Assalamu alaikum, Aliza. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. How are you, Mayor? I'm good. I'm good. Thank you so much for taking out time. A lot of people know that what's the main reason of this cup shop session is just to get as much knowledge as from industry professional and people and everyone ताकि हमें पता चल जाए कि यार जो लोग graduate हो रहे हैं वो क्या-क्या चीजें बेहतर कर सकते हैं. Not only graduate, people who are working 9 to 5 and they wanted to switch to something else. So that can be one of the things. But before you start off, I want to first of all congratulate you on this initiative, and secondly, I'm really, I appreciate that you're having me here, and also ये जो पूरा आपने initiative start किया है, it's one of its kind on LinkedIn. I really like it. Thank you, thank you. So before we jump into the topics and the conversation, I want you to introduce yourself. I'm pretty much sure a lot of people know you, but just for the audience, if you can, tell me yourself. क्या चल Just रहा did है? another interview. नहीं क्या चल रहा है life में? How's everything? Because what I personally believe, everyone know you as a front face of a brand, but now Not everyone. I think that a lot of people know you, but just for the audience, if you can tell me about yourself, क्या चल रहा है आजकल, how's everything, how's life, and then we'll start the conversation. Settling into life, corporate life, and a lot of things are happening. तो भाई मेरा नाम अलीज़ा है एंड मुझे जो चंद एक लोग जानते हैं वो स्टार्टअप पाकिस्तान की वजह से जानते होंगे बिकॉज आई यूज्ड टू बी देयर कंटेंट क्रिएटर एंड अ पॉडकास्ट होस्ट देयर amazing journey. I still owe to them everything that I am today in terms of podcasting, in terms of being a speaker. I owe it to them. And journey yaar aise start हुई थी कि I do identify myself as a very creative individual. I've been into public speaking. I've been into singing, painting, arts, music all my life, debating. So वहाँ से बस शौक start हुआ था. And then I got into business because like every other student back in my university time, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. And a part of me wanted to become a singer, a part of me wanted to become a painter, and I was just lost. And Abibi, if I say that I'm out there to help all of the young professionals and young people who don't know what they want to do, they can always come to me and ask for help because मेरे टाइम पे मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था. I did not find a career counselor, and my family, because I come from a humble background, I come from an army family. So my father being an army officer, my mother being a doctor, they always wanted me to get into a respectable profession, जो हर parents समझते हैं कि respectable होता है. But since every parent also know the temperament and compatibility of their child with the certain subject they're going to choose. So for me, doctory or ये सारा कुछ engineering तो नहीं था. Although I was a pre-engineering student, but because मेरा mind बहुत creative था, so I always wanted to get into something where I can get to leverage my skills. So उस time कुछ समझ नहीं आया, and like every other student BBA कर लेते हैं. ठीक है, And I'm मतलब not mocking it. At that time, I used to, but I still give it to my first institute, Beria University. I completed my BBA from there, and I would say कि जितने भी मेरे passions हैं उनको real time में मैं जो explore कर सकी थी, that was in my university time. I became president of events club. I used to arrange a lot of events. I became part of the music society and all the clubs, and I was very much into extracurriculars. So I think मैंने अपनी degree के साथ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा की हैं जिनको I till date I owe it to my institute. agree. But then when I ठीक है, ये तो बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब इस चीज़ को Okay, I can go on and on, but एग्री, अरे यू आर राइट, कि a lot of time जो भी लोगों को करना होता है वो उनको इसलिए नहीं पता होता कि यार I won't say a mentor, career counseling. I'll say कि यार it's about generation to generation gap होता है, ठीक है? yeah, I'm pretty much sure Gen Zs might not relevant that इस चीज़ को उतना relevancy देंगे, क्योंकि a lot of Gen Zs as parents like जिनको पता है कि यार ये क्या चीज़ है, किस किस फील्ड में काम हो रहा है, और क्रिएटिव के अंदर भी like millions of branches कि भाई आप किस ब्रांच में चाहते हैं. So let's like we'll be discussing those things, but let's start with यार कि how it feels like when you are a face of a brand. ठीक है, because being not, it's about not being a content creator, क्योंकि जब आपकी content creator की जर्नी खुद से स्टार्ट होती है तो आपको आप जीरो से चीज़ें देख रहे हो, तो ठीक है, यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय योर ओन, ठीक है, और वो जर्नी बहुत बड़ी होती है, बट आप जब एक ब्रांड के फेस वैल्यू होते हैं ना तो थोड़ी बात अलग होती है. आई एम प्रीटी मच श्योर पीपल यूजली नो कि यार हाँ यार अलीजा इसको हमने वहाँ देखा था, एंड पीपल लाइक समवॉट सी क्या, ठीक है, ये तो सेलिब्रिटी और इस तरीके की चीज़ है। बट उसके अलावा भी एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है जिसमें आपकी एजुकेशन और सारी चीज़ें, ठीक है। हाउज़ हाउज़ दैट फील लाइक आपने एक गुड क्वालिटी ऑफ टाइम स्टार्टअप पाकिस्तान में लगाया,
डू यू थिंक दिस इज समथिंग जो कि लोगों को करना चाहिए, इनिशिएट लेना चाहिए? नो, चाहे वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं, किस तरीके से मैनेज करते थे? हाउ अलीजा, लाइक अलीजा की लाइफ उस वक्त कैसे थी जब वो पाकिस्तान, स्टार पाकिस्तान में काम करी थी? Fun and very unexpected. But Umair, as you said, if someone is like a face value of a brand, it's not something जो किसी को बुरी लगेगी. But I think it only becomes bad for you once your personal identity starts getting overshadowed by you being associated with certain brand, one, and second, you get stagnant. So for me, when it started, it was a huge hit. And then because I and one another girl there, we started the storytelling value tree. So Startup was the first one to initiate that in Pakistan. And then all of the other pages started coming in. And then once I started doing those content creating and storytelling value videos, so they gave me this opportunity to start hosting podcasts. And that was another thing that I did. And once I got into it, तो मुझे मजा बहुत आ रहा था and I was enjoying it. But then डीप डाउन मैंने उस टाइम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की, बट मुझे कोई अलीज़ा आफ़ाक के नाम से नहीं जानता था, बिकॉज़ माय नेम वाज़ नेवर बीइंग, शोड देयर इन दैट वेरी वे विद स्टार्टअप पाकिस्तान. सो एवरीबॉडी यूज्ड टू बी लाइक, "ओह, दैट गर्ल हू कम्स ऑन स्टार्टअप पाकिस्तान." Even my first job where I went on, "Oh, you come on startup Pakistan." So deep down, I was happy that people know my face, but they don't know my name. And then the kind of effort that I'm putting in there, I know nothing about Startup Pakistan, like they're doing everything, like अभी भी सब बहुत अच्छा चल रहा है. But then that kind of highlight or that kind of limelight that you do want when you're associated with a brand, वो आपको नहीं मिलती जब आप एक brand का face value होता है और आपका recognition level थोड़ा कम होता है. So in that way, for all the people who are looking forward towards that, I would just say one thing: you take your humble start from there. अगर आपको एक opportunity मिल रही है, do avail it, because whenever you start, आपको कोई foreign से, आप अपनी चीज़ भी foreign से start नहीं कर लेते until or unless you have an experience. So for me, I count startup की चीज़ as an experience, as a very wealthy experience that I got. However, my choice of not staying there for long and then disassociating myself from them was a personal choice, because अब मुझे लग रहा था कि वो stagnancy आ रही है, and then people are knowing me for the girl on startup, but people weren't actually knowing me for being a Lisa Fuck. So that is that. And I think it suits everybody, whatever they want. Totally agree, क्योंकि um, um, the main reason of discussing this is because a lot of people usually think यार, um, being a content creator is it's a big responsibility. Whatever you are saying, sometimes आपको देख के कोई ना कोई बंदा जो है उससे एम्फसाइज हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है, अलीज़ा फ़ाक या एक्स वाई ज़ेड जो भी कंपनी है, जिस भी ब्रांड, अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो मेन रीज़न यही था कि यार लेजिट रिसोर्सेज हो, उन लोगों से बात की जाए और वो चीज़ें पता चले लोगों को कि जो कि वाकई में है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंटेंट राइट नाउ, अगर मैं किसी को भी तो मैं कहता हूँ कि यार करना ज़रूर चाहिए। सबको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको ये पता चलता है कि यार लोग किस तरीके से समझते हैं, एंड कॉन्वर्जेशन ऑन ऑन कैमरा इज टोटली डिफरेंट रादर देन कॉन्वर्जेशन ऑन ऑन वन टू वन कॉन्वर्जेशन, ठीक है? तो ये तो एक पार्ट था आपका, बड़ा अच्छा सा गुजरा और आपने इस चीज़ को कंप्लीट करा है। अ लॉट ऑफ पीपल प्लस माइनस हर चीज़ के होते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी सी रियलिटी में कि पाकिस्तान के अंदर रियलिटी है भाई, ये लम्ब से पढ़ोगे ना तो नौकरी पक्की है, सही है। अब ये तो मुझे थोड़ा सा ना, नहीं पता गया. I do wanted I really wanted to know because I do have a lot of friends who are studying from LAMS, IBA, big universities, एंड इसके लिए इस पॉइंट पे ना मेरा एक नज़रिया होता है कि यार यस, इट डज मेक सेंस एट सर्टेन पॉइंट कि अगर आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, क्योंकि 4 साल में आपसे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, आप यूनिवर्सिटी के साथ एक्सपीरियंस होता है, आपके दोस्त होते हैं, आप किन लोगों के पास जा रहे हैं, आपके टीचर्स क्या हैं, आपकी फैकल्टी क्या है, ठीक है? हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम अबहरिया टू लाओस? एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो 360 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेम टू सेम हो, क्योंकि इसमें ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटीज़ बुरी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको पता हो कि आपको बैचलर्स कहाँ से करना है और आपको मास्टर्स कहाँ से करना है। क्योंकि मास्टर्स में आप उस लेवल पर नहीं होते कि हाँ भाई ठीक है, फन है, जाएँगे, बाहर घूमेंगे। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट मेकिंग मेकिंग कनेक्शन विद राइट रिसोर्सेज़, क्योंकि हो सकता है आपके मास्टर्स की डिग्री में जो बंदा बराबर में बैठा हुआ है, वो किसी कंपनी का मैनेजर हो सकता है वो किसी कंपनी में काम करता हो, और इसी तरीके से आप बात करते हैं। So why basically you shifted to Laos? What's the right pathway you choose? I'm pretty much sure a lot of people doing bachelor's from one university and they do masters from the same university. Why do you choose Laos?
One thing that you said कि someone who chooses to do their bachelor's from a certain university and then master's के लिए you must go to a good institute, LUMS or one thing. I would say Pakistan में whoever can afford to go to LUMS for their bachelor's, master's, just go. Because I would not disagree with this fact कि LUMS का नाम है and this fact कि LUMS से निकलते तो आपको नौकरी मिल जाती है, आपको मिल जाती है. This is one thing that privilege that gets attached to the students studying at LUMS, it is there. I would not deny. But then solely इस चीज़ पे बिलीव करना कि मेरी डिग्री लम्स है, बेशक अंडरग्रेड है, बेशक मास्टर्स तो मुझे जॉब प्लेट पे मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. People who are giving you jobs because of the name of the institute, they're giving you the job because you have something in you also. Skills matter, your communication skills matter. आप कितना अच्छा navigate करते हो through that environment matters a lot. और अगर मैं एक ऐसे environment से आ रही हूँ जहाँ पे उतना exposure ही नहीं है, तो मैं किस तरह एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कल को मैं एमएनसी में जाके बैठ जाऊँगी एंड आई एम गोना बी जस्ट लाइक द अदर पर्सन सिटिंग देयर फ्रॉम लम्स. One thing. Second, if I talk about my exposure, if I talk about my experience, it was great at Berry also because I myself am an extroverted person. So I socialize a lot, I network a lot. So for me, back in Berry, अभी मसला नहीं था और लम्स के बाद तो I would say चार चांद लग गया उसको. And the kind of resources, the kind of facilities, the kind of faculty, the kind of coursework, because everything we went through in MBA at LUMS is replicated on Harvard का सारा concept. तो one thing that taught me a lot is कि मैं बैरिया से जब यहाँ पे आई तो मैं वैसे तो बहुत गप्पे मार लेती थी, बहुत बातें कर लेती थी, बट क्लास में बैठ के सीपी लगती थी ना, क्लास पार्टिसिपेशन व्हिच इज 50% ऑफ योर ग्रेड. यू हैव टू स्टडी दिस 100 पेजेस का दत्था आने से पहले केसेस का, एंड देन यू हैव टू सिट इन क्लास एंड जस्ट टॉक. एंड यू डोंट हैव टू जस्ट टॉक, लाइक इंस्ट्रक्टर वुड आस्क यू कि वो फाइनेंस केस फलाने में कहाँ पे क्या हुआ था, एंड यू कांट सिट ब्लैंक. एंड देन द competitiveness, the kind of people who are coming from that diverse background, क्योंकि मेरे साथ पे मेरी अपनी क्लास में there are people sitting who have come from their experience in multinationals, people are coming from London Business School, and they're sitting there, and then आपको एक अंदर से complex होता है एक तरह के I've come from an institute that was not that at that level which is LUMS, but then one thing कि वहाँ पे आपको सब equally treat करते हैं, and the kind of exposure you get once you get out, it's multiplicated. बट ये बात कि जॉब मिल ज़रूर जाती है, बट कितने लोग उसको सस्टेन कर पाते हैं, वो वही हैं who are good at their hard skills, are good at their soft skills, who are good at their people skill, and at the end of the day, how you present yourself out there after getting a degree from LUMS that matters. It's not just कि आपने LUMS से डिग्री की है. थैंक यू फॉर हाइलाइटिंग दीज थिंग्स. ये ना बड़ा एक डिफरेंट सा माइंडसेट बना हुआ है लोगों का. I myself a graduate from Mitra University and I don't think कि यार एक डिग्री यस आपको प्रिविलेज देती है और ये बात बिल्कुल ठीक है. जब कोई बंदा वहाँ पर जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. Yeah. इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स नॉट अबाउट ओनली एजुकेशन, इट्स नॉट अबाउट ओनली ग्रेड्स. क्योंकि आपको पता चलता है कि ठीक है हमें लाइफ के अंदर और लोग किस तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं. तो दैट्स गुड थिंग. तो यू ग्रेजुएटेड, आप जॉब कर रही हैं, तो Mm. कैसा लग रहा है एमएनसी? Amazing, amazing. And my graduation is on this Saturday, so I'm just very excited about that also. It's going really nice. I would still say like I landed my internship at British American Tobacco where I'm working right now. Last year, when हमें LUMS में अपनी internships करनी होती हैं, and I applied and I got there. The exposure was amazing, and since I have never worked in an MNC before, तो वहाँ पे आके मुझे realize हुआ the kind of the people, the environment, and एक intern को वैसे आप किसी और work place पे चले जाओ तो maybe उस तरह से treat नहीं किया जाता. पेपर स्टेपल करके ले आओ, प्रिंट करके ले आओ, चाय लेके आ जाओ. Actually में यही है. I've also interned in an advertising agency that because of my skills and all later on I was able to showcase that. उससे पहले यही होता है, आपको काम नहीं देते. But in an MNC, and especially the students, the interns that are coming from LUMS, unko bhi they get them done through this test, and then wahan pe aake we do that real time work, and I was able to actually assist my managers there. So this was one thing, and I absolutely loved the work, and I knew that once I get graduated, I want to come back to this company and work, and they appreciate and they take you back if you're a good resource. So MNC का exposure is going really nice, and I think I would want to continue this for आई थिंक I आई थिंक इसका जो अगला स्टेप ये होता है जब आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है, एंड आई थिंक आप बहुत सही रिसोर्स होगे उस चीज़ को मालूम करने के लिए, क्योंकि जो आपका कंटेंट था वो ज़्यादातर स्टार्टअप पाकिस्तान का लिंक्डइन पे बूस्ट हो Now, one more thing.
One more thing I would add, जब मैं internship पे भी गई थी ना, this one thing that I was saying that oh ये तो startup पे आती है, so हमारे there was this person in our company in my team जिन्होंने हमें हमारे सारे interns को introduce कराया सारे departments के साथ, so वो हमें लेके जा रहे हैं और हर department, mostly in a lot of departments people knew me because I was very active on LinkedIn and I was doing this podcasting thing, so इससे पहले कि मैं introduce कराऊँ, a lot of people knew me already, not with my name but obviously somebody who comes on startup or somebody who does the podcast, मैंने आपका LinkedIn देखा था. So this plays a very vital role even in any job sector, international areas. If you're going, your LinkedIn and your face value again, if you're doing all of that, बहुत cash in that. So I would say that the kind of treatment you get, it comes from if you're into this content creation. That is what I wanted to discuss. So a lot of time people in Pakistan वो अभी भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि लिंक्डइन है क्या, ठीक है? हमारे यहाँ लिंक्डइन, टिकटॉक, शादी.com, कंपनीज में ये बुरा हो रहा है, ये चल रहा है, ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है कि सही, अगर 100 में से 2% ऐसा कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं कर रहा है। Mm. यू बीइंग अ लम्स ग्रेड, ठीक है? तो अगर मैं चेकलिस्ट बनाऊँ, तो उस चेकलिस्ट में कुछ चीज़ें आपको खुद से मिली और कुछ चीज़ें आपने ऐड करी हैं, ठीक है? आप लम्स ग्रेजुएट थी, चेकलिस्ट डन, बट आपने अपनी लिंक्डइन को उस तरीके से बरकरार भी रखा, ठीक है? पीपल पीपल नो यू बिकॉज़ आपको पता होता है कि यार लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल कनेक्शन के साथ-साथ आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि एमएनसी हो या कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे नो वन केयर्स कि भाई अगर आप कितनी अच्छी पॉडकास्ट हो तो, क्योंकि आपका जो केपीआई है जॉब का, वो केपीआई रहेगा। वो ये चेंज नहीं हो जाएगा कि कल को कोई अलीज़े के पास आके बोलेगा, चलिए ठीक है आपने काम सही नहीं करा, आप होस्ट थी तो आपका काम मैं कर देता हूँ। दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। व्हाट डू यू सजेस्ट यार? Yeah. यू सेइंग समथिंग? I was just saying this LinkedIn wali cheez, and if I'm a podcast host or if I'm good at communicating or if I can talk on any topic, having done the research, I think that acts as your digital resume nowadays. Whenever you're at a job, बेशक आपके KPIs आप meet करें वरना तभी job मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, but that digital CV वाला part, your LinkedIn, that is actually, I think that would land you that privilege. So I would not आई थिंक say. आई थिंक ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना कोरोना के बाद से ना पाकिस्तानियों को समझ में आया कि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म यूज कैसे होता है, ठीक है? Hmm. यस, आई डू एचआर एज अ सेलिब्रिटी ऑन लिंक्डइन बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इट्स देयर मार्केट और हर बंदा उनको रीच आउट करता है, लेकिन आपकी प्रोफाइल इसलिए भी ज़रूरी होती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि का अलीज़ा की वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन कहीं थी तभी वो उसको जानते थे, ठीक है? अगर लोगों को ये ना पता हो कि आप लम्ब से पढ़ी हैं, आपने वैरियर से पढ़ा, आपके बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन उनको ये पता है कि हाँ, ये एक चीज़ करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान, जब आप रियलिटी में जॉब स्टार्ट करते हो, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है उसका, आपका सबसे पहला इंटरेक्शन जो किसी बंदे का होता है वर्चुअली होता है। आप बाद में किसी से मिलते हो, आप किसी को पिच करोगे, आप कहीं पे भी काम के लिए जाओगे, आप एचआर को सीवी भेजोगे, तो सबसे पहले उसने आपकी आपकी शक्ल देखने के बाद आपका लिंक्डइन खोल के देखने के, यार आपने करा क्या है? एंड Exactly. एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव, लिंक्डइन के अंदर इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप ग्रेजुएट हो तो उसके बाद आपके पास बहुत कुछ डालने को है। आप अपने अपने थ्रू आउट योर बैचलर्स, आप अपने थ्रू आउट योर मास्टर्स अपने अचीवमेंट्स डालें ताकि लोगों को पता चले कि ठीक है आपके में। I when I was starting here at Lums, I won't lie, मैंने LinkedIn पहले Lums आने से पहले यूज़ ही नहीं किया था. The traction I've got, the followers that I've got, the content that I started posting, I started doing that the first day I came into Lums because, and I would give this to my father. He was the one who sat me down one day and he said, "कि Instagram पे time waste कर रहे हैं, Facebook पे कर रहे हैं." He actually introduced me to LinkedIn, and I was like, because for me, I was at an ad agency, मेरा content वाली सारी चीज़ें Instagram से linked हैं, so how would LinkedIn be relevant to me? He said that start using LinkedIn as Facebook, start using LinkedIn as Instagram. Your achievements, whatever you're doing there, if they're relevant to your work site, use LinkedIn. Why aren't you using LinkedIn? And the first day I went to LUMS, the first post that I put up was that I'm starting my MBA at LUMS and see the beautiful campus that I'm at and what I'm going to do. And from that day onwards, every week I started posting. And then the kind of traction I started getting, the kind of people I started getting to know through LinkedIn, I think आपको exposure मिलता है ना, आपको सही लोग मिलते हैं, आपको गाइड करते हैं, फिर आपको LinkedIn की समझ आती है. The kind of community जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो अभी भी उसको मैट्रिमोनियल साइट बना के बैठे हुए हैं या whatever, they're still lacking that knowledge and still lacking that exposure and connection जो उनको एक्चुअली बताए कि भाई LinkedIn के थ्रू क्या-क्या हो रहा है. अरे मुझे एक और चीज़ बताना कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको आपके अब्बू ने बता दिया, ठीक है? हर कोई किसी के पास मेंटर नहीं होता, ठीक है? बट व्हेन यू स्टार्टेड इट, तो मुझे ऐसा लगता है एक्सप्लोरेशन है। हर बंदे का Yeah. अलग-अलग है। कोई किसी को लगता है कि यार
I'll go quantity over quality, I'll go quality over quantity. हाँ। सम पीपल थिंक यार मुझे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करनी चाहिए, सम पीपल नहीं कि मुझे अचीवमेंट शेयर करनी चाहिए। व्हाट्स योर ओवरऑल थॉट प्रोसेस? आपने किस तरीके से देखा? आर यू समथिंग कि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे रोज़, क्योंकि रोज़ अपलोड करने का भी एक प्रेशर है। Oh. For me, I would say since I was already working as a social media manager at the advertising agency, तो मैं already clients के pages handle कर रही थी इन चीज़ों के अंदर on Instagram, on Facebook because वो सारे food के clients हो गए, restaurants हो गए, so that's not very relevant to LinkedIn. But अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि आप Crumble को देख रहे हैं LinkedIn के ऊपर what they're doing. So LinkedIn is Crumble these days. But coming to that, उससे पहले the thing कि how I started since I knew कि content posting is quality, it's not quantity first of all. एंड देन कंसिस्टेंसी मैटर्स। अब मैं एक पोस्ट लगा के बैठ गई हूँ और मैं 2 हफ्ते तक नहीं लगा रही हूँ, मैं तो दैट आल्सो मैटर। तो आई थिंक बैलेंस लेके चलना चाहिए। व्हेन आई स्टार्टेड आई न्यू द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम गोना पोस्ट, इट्स गोना बी रेलेवेंट टू माय एजुकेशन, इट्स गोना बी रेलेवेंट टू माय करियर, इट्स गोना बी रेलेवेंट टू द पीपल आई कनेक्ट विद हू विल आल्सो हेल्प मी लेटर ऑन टू गेट अ गुड जॉब मे बी और टू गेट इनटू अ गुड प्लेस। और बिकॉज़ आपके माइंड में आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए वंस यू आर यूजिंग लिंक्डइन। फन के लिए तो नहीं यूज़ कर रहे ना। एवरीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लोर अपॉर्च्युनिटीज़, एवरीबॉडी वांट्स टू लैंड अ गुड जॉब एंड आई थिंक लिंक्डइन इज़ दैट प्लेटफॉर्म यू डू एंड आई नो दैट। ठीक है। अब थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर आते हैं। कंट्रोवर्शियल नहीं है जिसमें मतलब जिसमें मेरा पॉइंट नहीं है, मैं सोचना जानना चाहता हूँ कि बीइंग अ गर्ल आपका क्या राय है उस बारे में? ठीक है, अ, वी सी अ लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग कि नहीं यार लड़कियों को ग्रोथ होनी चाहिए और ये सारी चीज़ होनी चाहिए। डू यू रियली सी कि ग्रोथ है, लड़कियों की होती है, या वी आर स्टिल लिविंग इन दैट कि जहाँ पे लड़कों को ज़्यादा वो दी जाती है कि ठीक है, ये लड़के ही करना चाहिए? ग्रोथ है। आई वोंट डिनाई कि नहीं है, बट देन I अगर मैं द I really देयर इज़ भी I really like when you pause for a second and see just growth तो है। नहीं, see, I worked in multinational now, and I think there जो cutthroat competition है, nobody treats you as man and woman there. And I've seen people working there. वहाँ पे ये segregation तो है ही नहीं कि ये I've seen my manager as a female. The thing is कि वहाँ पे the people who are working, they don't see themselves कि I'm a woman or I'm a man because उनके लिए उनका career is there and then we don't know whatever is happening in their personal life, but they treat their work as their religion. That's what I've seen in multinational because वो इतना fast paced है. But the fact that if the men are growing or not, they are opportunities हैं आपको वो पूरा स्केल मिल रहा है बट आई थिंक हमारे लिए एक पर्सनल प्रेफ़रेंस आ जाती है, एक चॉइस आ जाती है कि हमने मैनेज कैसे करनी है चीज़ें। एंड वन्स यू स्टार्ट पुटिंग योर पर्सनल लाइफ इनटू योर करियर लाइफ फॉर वुमेन, आई थिंक देन द ग्रोथ somewhere starts declining because um, of the society we live in and the social stigmas that are attached. But as a personal choice, वहाँ पे segregation कोई नहीं है। अच्छा, इसका इस सवाल का मेन रीज़न यही था कि यार आई सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स हू रियली वांटेड टू ग्रो, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों और लड़कियों को ना आप मिला नहीं सकते, ठीक है? फॉर अ वेरी गुड रीज़न। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि लड़कियाँ कोई काम नहीं कर सकती, लड़कियाँ हर चीज़ कर सकती हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट जो लड़कियाँ इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हैं और अपने लिए काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, ठीक है? बट देन वी नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है? हुँ। अगर लड़कों को कोई चीज़ आसानी से मिल रही है बकौल किसी और के, तो लड़कियाँ थोड़ा सैक्रिफाइस ज़्यादा करती हैं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन 2025 हर इंसान को एटलीस्ट यूनिवर्सिटी नहीं तो किसी न किसी इवेंट में जाके अपना पीआर ज़रूर बनाना चाहिए। व्हाट आई पर्सनली बिलीव, अम, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी एमएनसीज़ में काम करते हैं। आई हैव अ प्लेज़र टू वर्क इन एमएनसी। आप एमएनसी में काम कर रहे हो, हमारी जब पहले बात हुई थी वो आप ना कनेक्ट कर लेते हो, भाई अभी तुम्हारे साथ सही हो रहा है, अभी 5 महीने बाद चेक करना, ठीक है? तो वो जो चीज़ है ना, बट हर किसी का ऐसा नहीं है, हर किसी का स्टार्ट वैसे नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़रूरी है कि आप ना किसी न किसी को फ़ॉलो ज़रूर करें। आप लड़की हो, आप लड़का हो, आप किसी को एज़ अ मेंटर, आप किसी को एज़ अ चैलेंज ज़रूर सेट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार हमें पैदा इसलिए नहीं करा कि हम खाएँ-पिएँ और एक दिन मर जाएँ, और या ये बैलेंस है। मैंने लोगों को देखा है जो जिनकी बेगमात पाकिस्तान में काम नहीं करती और जब वो पाकिस्तान से बाहर सेटल होते हैं, तो दोनों काम कर रहे होते हैं।
क्योंकि उनको पता होता है कि यार यहाँ पे नहीं हो सकता कि एक बंदा काम करे और एक बंदा नहीं करे, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं यार हम अपनी फैमिली अभी स्टार्ट नहीं कर रही क्योंकि यार हम दोनों काम कर रहे हैं। भाई पूरी दुनिया में लोग काम करते हैं, पूरी दुनिया में सब चीज़ है, ठीक है। सो But then in mind, we cannot also discount this fact that the society we live in, जो एक unfair advantage I would say men have get whatever the jobs they're doing, the career they're into, उनसे एक certain next अलग तरह की expectation नहीं रखी जाती. But if for women is career oriented, if for me my job is here and for me my personal life maybe शायद अभी उस level पे नहीं है because I don't have to support a family or anything, but then the mindset that hits in, even if it's not at the workplace, from your background or maybe your families, वो एक चीज़ attach हो जाती है unintentionally भी कि a woman at the end of the day is supposed to manage a family also. And for me, I'm of the notion that a man has to do that also. आपने अभी एग्जाम्पल दी कि बाहर जाके दोनों काम कर रहे हैं. अब बाहर जाके तो as a woman I can also say कि for me a family is thing मैं तो नहीं करती. But then the mindset that I'm saying is कि for us it should be a choice. For us it's not a choice. For men एग्री it's a choice. एग्री एग्री इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। मुझे ऐसा लगता है यार कि आई हैड कॉन्वर्सेशन विद फ्यू पीपल एंड आई वाज लाइक यार हर जगह आप लोग बोल रहे होते हैं कि यार लड़कियां तरक्की कर रही हैं, यार कर रही हैं तो कहाँ है, ठीक है। आप बड़े 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 सीईओज और और जो कर रही है ना, सॉरी टू कट यू, जो कर रही है उनको सुनना बहुत कुछ पड़ता है, बट दे डोंट गिव टू शिट्स अबाउट इट. सॉरी if it हाँ नहीं the point they don't, and then these women are strong headed, career oriented, independent women. They don't give a ear to what other people are saying. अच्छा द पॉइंट इज क्या लोग कहते हैं कि कर रही हैं, अगर 100 लोग हैं उसमें से 4 लड़कियां और 96 लड़के तो उसकी इक्वालिटी नहीं होती, ठीक है। उसमें वो बेचारी क्या, आई नो अलॉट ऑफ That's a step. That's a step forward that we're taking, so that other women who are coming, maybe from a humble background or maybe from somewhere they can on the whole, they can look up to the people who are doing. So it's just that maybe it's a अच्छा इससे रेलेवेंट टॉपिक ये है कि आप लड़की हैं, ठीक है, और आप कंटेंट I see क्रिएटर you थी। having so much fun. आई नो आई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं मेरे हाथ में नहीं था, मैं लड़का पैदा हुआ हूँ। आई रिस्पेक्ट दैट यार, मैं मेरी घर में बहन है मेरी, हर जगह जो औरतें काम कर रही हैं आई रिस्पेक्ट दैट, ये ठीक है। Mm. बट ये वाला जो पॉइंट अभी मैं शेयर कर रहा हूँ ये तो मुझे कंफर्म 110% पता है कि हुआ होगा, ठीक है। क्रिटिसिज्म इन सोशल मीडिया इन पाकिस्तान बीइंग अ फीमेल एंड अ होस्ट, इतना तो अच्छा नहीं हुआ होगा ना कुछ तो। It goes like this. It does. I won't deny. Hate है बहुत ज्यादा. How do you think what's the right way to handle it? Because to be very honest, what I personally believe कि लड़कियां ना इमोशनली होती हैं क्योंकि उनको उनको बनाया वैसे, ठीक है। और और हाँ आपको ना हमेशा ना प्रोटेक्टेड रहने की वो होती है यार, अच्छी बात है कि यार आपके भाई हो, आपके हस्बैंड हो, आपके आपके अब्बा हो या कोई भी आपके जो लव वंस हैं वो आपके पास हो, ठीक है। सोशल मीडिया ना पाकिस्तान का ना थोड़ा सा जीरो बफर पे चलता है, सही है। इट गोज 1 और इट गोज 0 बाइनरी तरीके से चलता है, उसमें ना कुछ ये नहीं होता। Yeah, ऐसे ही तो आई एम है. प्रीटी मच श्योर कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई होगी यार कि लोग कमेंट कर देते हैं, और आप मानो या ना मानो आप कमेंट देखोगे, आपका दिन बुरा गुजरेगा। हाउ डू यू हैंडल दैट थिंग, क्योंकि I have like a story to share for this. आई वुड लव टू लिसन। I remember when I started working startup में मैंने तो expect भी नहीं किया था क्योंकि पहले accounts public थे नहीं, and this was something that I was thinking मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है, I'm making content that's business oriented, this is which is news oriented, which is finance or the economy stuff. What am I talking wrong about? One thing. Once we started making videos and all, तो अब आए दिन comments आ रहे हैं, और क्योंकि स्टार्टअप पे रीच भी बहुत ज़्यादा थी, हर तरह का कमेंट आ रहा है, हर तरह का इंसान देख रहा है। ऑब्वियसली अब आप ये नहीं कह सकते कि ये ना देखिए और ये देखिए बिकॉज़ इससे रेलेवेंट है, इससे रेलेवेंट नहीं है, तो एक सारी आवाम रही है पाकिस्तान की। खैर बहुत बहुत कमेंट्स आते थे एंड आई वुड से गंदे कमेंट्स आते थे, एंड इट यूज्ड टू ट्रिगर मी पहले बिकॉज़ पहले मैं देख रही थी, बट मुझे मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो मेरा भाई भी देख रहा है, वो मेरे फादर भी देख रहे हैं, मेरी अम्मा भी देख रही हैं। एंड माय मदर sat me down one day and she said, "What is this?" Like, and that's not in my control. मैं गई अपनी टीम के पास, एडिटिंग टीम के पास, और मैंने कहा इन्हें डिलीट करो, लाइक कमेंट्स डिलीट करो, लाइक क्योंकि आई एम आल्सो गेटिंग इनसिक्योर द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट आर कमिंग एंड दे आर नॉट इवन रेलेवेंट, द हेट कमेंट्स, दे आर नॉट इवन रेलेवेंट टू द पोस्ट, द कंटेंट इज जस्ट objectifying and bad stuff. And then they're like, कितने delete करेंगे? Reach goes here, bad comments go here, and the kind of sick, I'm sorry,
सिक पीपल, माइंडलेस पीपल जिनके पास पाकिस्तान में कुछ करने के लिए नहीं है, वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं सिर्फ हेट फैलाने के लिए। आई सी वुमेन, आई लुक अप टू 2 वुमेन, आई लुक अप टू सिद्रा इकबाल, आई लुक अप टू मारिया मेमन। दे आर दोज़ अमेजिंग पब्लिक स्पीकर्स, दे आर माय लाइक influential figures I look up to. इतना अच्छा बोलती हैं, they're doing political stuff, they're doing social stuff, I follow their Instagrams, everything is उनके उस पे जाके आप देखें वहाँ हेट कमेंट्स हैं। क्यों है? मुझे ये समझ नहीं रहा कि आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड देन इफ यू स्टार्ट गिविंग थॉट्स इनटू इट, 2 सेंट्स अबाउट इट, आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं। फॉर अ मंथ मेरी मेंटल हेल्थ खराब हुई थी एंड देन आई एक्चुअली थॉट कि मैं छोड़ देती हूँ। बट देन मैं छोड़ दूँगी तो कल को they're they're doing it. So I think if you know you're doing the right thing and if you know okay, at certain point that brings you happiness and you're not doing anything wrong, don't give a shit about this. पाकिस्तान में लोग यही कर रहे हैं and they would start spreading it. यहाँ नहीं करेंगे, आप बेशक जाके कहीं पे बैठ के इस्लामिक कंटेंट भी देंगे ना, वो वहाँ भी बोलने आ जाएंगे because they're just too free to do that. The main reason of asking this is to redirect it to personal life of a girl. ठीक है, what I see is um, एक लड़की की अपनी अपनी जर्नी में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रही होती है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि पहले तो उनकी बहुत इज़्ज़त है, जो लड़कियाँ हैं और बेचारी खुद कह रही हैं, उनके पास कोई बैकअप नहीं है, ठीक है? क्योंकि हर किसी की ना लेवरेज अलग-अलग होता है, कुछ के पास भाई होते हैं, कुछ के पास ड्राइवर्स होते हैं, कुछ के पास नहीं होते, ठीक है? एक तो पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि फिर आई सैल्यूट दोस्त के जिनकी फैमिली और वो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखती हैं, ठीक है? अ लॉट ऑफ टाइम पीपल अ लॉट ऑफ टाइम गर्ल्स, अ लॉट ऑफ पीपल वोंट डूइंग दिस थिंग क्योंकि उनको पता है कि यार ये होगा। तो वो उस चीज़ को पहले ही They छोड़ don't get into the industry because of the hate. anything they like for example उनको अगर I see a lot of people I talk to a lot of people and they were like यार हमने अप्लाई करा and we got अजीब से मैसेजेस everyone knows what I'm talking about ठीक है Don't open your request folder. Don't see your inbox. I personally see कि देखो आप किसी को ना अनसीन कुछ नहीं कर सकते आपने एक मरतबा देख लिया ना वो आपके पास रहेगा दिमाग में तो सिर्फ वो चीज़ देखो जिस पर फोकस करना है ठीक है और मुझे ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान में जिनके पास 2 अंगूठे हैं ना और जिनके पास स्मार्टफ़ोन है, वो अपनी राय रखते हैं, ठीक है? It's एंड free to do. Yeah. एंड दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया वर्क मुझे ऐसा लगता है कि यार लिंक्डइन पे भी इसी तरीके से है क्योंकि यार उससे कुछ नहीं होता। आई हैड अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइन हू लिव्स इन यूएई एंड मैंने उनसे पूछा कि डू यू गेट दीज़ मैसेजेस क्योंकि अब ना मेरे पास ना एक वो हो गया था, एक टॉपिक आया मैंने बोला यार पाकिस्तान की लड़कियाँ तो ये डाल रही हैं। तो अंग्रेज़ों से पूछते हैं क्या उनके पास आ रहे हैं? मतलब वहाँ तक जा रही है हमारी वाइव्स या बेचारे सिर्फ़ पाकिस्तान में रुक जाते हैं? एंड आई वाज़ लाइक मैंने उनसे पूछा कि यार ऐसा होता है? तो बोला, हाँ, होता होगा तो आई डोंट माइंड मतलब मैं कुछ रिप्लाई नहीं करती, ठीक है? इट्स लाइक कि आप उसको चीज़ों को छोड़ो क्योंकि अगर आप उसको छोड़ोगे नहीं ना फिर वो चीज़ें आपको खींचती रहेंगी। तो इट्स गुड कि यार क्रिटिसिज़्म को हैंडल करना चाहिए क्योंकि You cannot grow if you're gonna give you're gonna just keep on listening to whatever everybody is saying. हर किसी की राय तो नहीं लेते ना। मैंने आज क्या पहनना है, मैं अपनी मर्ज़ी से पहन रही हूँ, मैं पूछ-पूछ के नहीं पहन रही हूँ लोगों से। तो इफ यू जस्ट कीप ऑन टेकिंग एडवाइसेज़ एंड लिसनिंग टू व्हाट एवरीबॉडी इज़ सेइंग तो फिर तो आप फँस जाओगे। ठीक हो गया। हाँ। लेट्स गो टू अनदर टॉपिक दैट इज़ यू आर नॉट मैरिड राइट? आर यू अ I कैन plan to do that. न और ऑब्वियसली एंड बहुत अच्छी बात है। I can sense the question. अ, I can agree. यार द पॉइंट इज़ कि व्हाट डू यू थिंक कि वर्किंग वुमन क्या होती है? मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि वो एक फीमेल आप होती मुझे है, बताएँ वर्किंग मैन क्या होता है? वर्किंग मैन मैं पहले सवाल करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे मन में मेरा अच्छा मेरा मेन पॉइंट ये है कि यार अ, वर्किंग वुमन डेडिकेटेड होता हाँ, है। डेडिकेटेड होती है ना तो व्हाई हाउसवाइफ की इतनी इज़्ज़त नहीं होती? ठीक है? हाउसवाइफ इज़ आल्सो अ वर्क हाउसवाइफ की भी इज़्ज़त होती है। अगेन this thank you for asking me this question. I want you to revert back to the answer I gave to your previous question which was the choice. ये सवाल ही क्यों एग्ज़िस्ट करता है? मेरी चॉइस है, मैंने हाउसवाइफ बनना है, मेरी चॉइस है, मैंने वर्किंग वुमन बनना है या मैंने कॉर्पोरेट लेडी बनना है, इट्स माय चॉइस एंड आई नो मेबी फ्यू इयर्स डाउन द लेन आई वुड वांट टू बी a stay-at-home mom. I would want to be a stay-at-home mom because that is something that I also want. मैं क्यों सारी ज़िंदगी कॉर्पोरेट में काम करती रहूँ? Like a man has to provide. This is something that a man has to do and a woman
हैज़ टू मेक अ होम एंड दैट इज़ समथिंग दैट अ वुमन हैज़ टू डू। आपका एक चलता हुआ आ रहा है, तो इन चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। उसके बाद इट्स अ चॉइस फॉर अ मैन टू सिट एट home and ask his wife to go and work, and this is a choice for a wife to listen to him and go to if she wants to. So I think there could be no better answer than this. The reason of discussing this is because a lot of people think यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी चीज़ में पढ़ा है ना कुछ, मतलब आपने 4-5 साल इन्वेस्ट करे, टू एवरीवन, मेरी बहन से लेके मैं हर लड़की को बोलूँगा कि यार, आपने अगर टाइम इन्वेस्ट करा है ना, तो प्लीज़ वर्क फॉर योरसेल्फ, ठीक है? वन्स यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी तो खैर आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगी, जब प्रॉपर फुल फ्लैश तरीके से स्टार्ट होगी। जब आपको पता होता है ना कि आप अपना पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंस। आपको पता होता है, आपको हर छोटी चीज़ के लिए पूछना नहीं पड़ता, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों की अपनी जंग है, ठीक है? लड़कों की अपनी जंग है, उनको घर के बिल देने और ये सारी चीज़ें देनी, बहुत सारी लड़कियाँ भी करती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार, आप जब भी पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, आप कोशिश करो कि अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है? अपनी एक पर्सनैलिटी बनाओ, फिर उसके बाद आपकी जो बात है कि यार, ठीक है, 4 साल बाद मैं कहती हूँ कि बट ठीक है, मैंने जितना काम करना था मैंने कर लिया, अब अपने बच्चों का ख़्याल रखना चाहती हूँ, रखें, ठीक है? लेकिन पहले प्लीज़ अपना एक वो होना चाहिए आपको, ठीक है? मुझे ऐसा But so एक चीज़ है ना, सॉरी टू कट यू, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, द थिंग दैट यू सेड कि अ मैन हैज़ टू प्रोवाइड, वो चीज़ें जब आप इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं ना, दिस इज़ आल्सो व्हाट आवर सोसाइटी थिंक्स एंड आई थिंक दैट डज़ एक्जिस्ट। वंस यू गेट इंडिपेंडेंट, आपको फ्रीडम की लत लगती है, आप पैसे अपने कमाने शुरू हो गए, आप किसी से माँग नहीं रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम यू गो इनटू दैट रिबेलियस फेज़ कि अब मैं वो चीज़ें क्यों करूँ? यू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप अगेन आई गो बैक टू द सेम थिंग कि इतना हम्बल रहें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना भूलें। अगर मैंने कल को अपना घर चलाना है एज़ अ वाइफ, एज़ अ मदर, आई वुड नॉट फॉरगेट दैट आई एम सपोज्ड टू डू दैट एंड दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट me earning, me providing for myself and not asking maybe my future husband for money, that would be my choice. And goes for him, he has to provide. तो ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी नहीं भूलें। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज़ पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए क्या है? आपने किस तरीके से इसको चीज़ों को देखा? क्योंकि अम यू नो क्या, ठीक है, स्टार्टअप पाकिस्तान का भी एक चीज़ आपको पता चल रहा होता है ना, क्योंकि एक चीज़ आप एक तरफ से आपको वो मिल रहा होता है रिस्पॉन्स, आप जो चीज़ डाल रहे होते हैं, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक पर्सनल ब्रांड शुड लुक लाइक? नॉट ओनली ऑन लिंक्डइन, या किस तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकता है ओवरऑल योर करियर ग्रोथ? A personal brand should reflect who you are and किस पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। मेरा पर्सनल ब्रांड हैज़ बीन स्ट्रिक्टली रेलेवेंट टू माय वर्क, हैज़ बीन स्ट्रिक्टली रेलेवेंट टू माय एजुकेशन एंड हैज़ बीन स्ट्रिक्टली रेलेवेंट टू व्हाट आई वांट टू डू। हाँ, if I have a public account that where I sing, I have a public account where I paint, but that is not something just say I want to gain something out of it. वो I do out of hobby। और मैं नहीं कि आई डोंट केयर वहाँ कितने फॉलोवर्स हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आई रेयरली पोस्ट बिकॉज़ आई डू इट फॉर फन। But my personal brand is my LinkedIn. My personal brand is people should know me for the content I make, which is podcasting, which is public speaking, which is the seminars that I attend, and the coaching that I do. So I think personal brand should reflect who you are and what you want to achieve, and the relevant people should relate to it. I see बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं आजकल, they're lost. हर बंदा कंटेंट बना रहा है। हर बंदा, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन आल्सो विद गुड अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, और रैंडम चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, लोगों की चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। आई थिंक दिस माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव फॉलोवर्स एंड फॉर पीपल टू नो यू, यू आर अ ब्रांड, नो। You should have a niche, you should have a knowledge, and you should have a circle that is relevant to what you're doing. It should be very niche specific. मुझे मुझे ऐसा लगा कि कंटेंट को लेके ना पाकिस्तान में ना थोड़ा ये हो गया है कि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है? मैं हाँ। इत्तेफ़ाक की बात है, अगर मैं भी खोलूँगा, मैं ये ड्राफ्ट ही लिख रहा था कल की पोस्ट के लिए, मैंने सोचा यार, आपके पास 100 लोगों कम 100 लोगों के लाइक्स आते हैं, आप कहते हैं कितने कम लाइक हैं। मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि यार, वो 100 लोग अगर असली में आपके साथ खड़े हों तो कितने ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इट्स नॉट अबाउट आई वाज़ सीइंग दिस पोस्ट, दिस क्रिएटर टिकटॉकर जिसने बहुत बड़ा गुलदस्ता गिफ्ट किया है अपनी मास ऑफ द फियांसे को, और उसपे इतना ज़्यादा एवरीबॉडी वाज़ टॉकिंग, एंड देन देयर इज़ दिस अनदर टिकटॉकर रेबेका पागी, लाइक दे आर ह्यूज नंबर्स मैन, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम, बट देन अगेन व्हाट इज़ दैट? यार, जो कंटेंट है ना, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंटेंट जब मैंने स्टार्ट करा ये, ठीक है? आई बीइंग इनटू प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क एंड ऑल, हमने बहुत ब हमने हमने बहुत बड़े-बड़े कमर्शियल बनाए, और उस दिन हमें पता चला कि भाई ठीक है, कैमरे के सामने ना नचवाना बहुत आसान है, ये कर सकते हैं। जब पहली मर्तबा मैंने पहली एपिसोड बनाई, एंड आई हैव अ थॉट कि यार, मैं जब 100 एपिसोड होगी इसकी, तो
I'll post my before and after, क्योंकि I have learned a lot of things, ठीक है? बट ये डिपेंड करता है कि यार आप कंटेंट क्या बनाना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको या आपके ऊपर है कि आप कौन-सा कंटेंट फॉलो करते हो, ठीक है? यू हैव आपने जैसे भी बताया कि यार वो गुलदस्ते वाला कुछ भी जो भी है, ठीक है? अब या जो भी टिकटॉकर्स हैं, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? यार कोई तो है उनको जो देख रहा है ना, ठीक है? और वो उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं। आपको नहीं देखना, आप मत देखो। सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ ना, तो आप हर चीज़ बेच सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा गुलदस्ता जो कि फेक फ्लावर्स का है और पता नहीं कितने रेंट पे जाएगा, ठीक For है? a lot expensive. And see, I don't want to consume this content और मेरे सामने आ रहा है तो मैं देख रही हूँ। Even if I'm talking negative, I'm still talking and that's the traction those people want. So you can't deny कि this exists. It मतलब exists. ये यार ये वही वाली बात है ना कि जब मैंने स्टार्ट करा तो आई स्टार्टेड ऑफ विद माय फ़ोन। स्टिल दिस सेशन इज़ आल्सो रिकॉर्डिंग विद माय फ़ोन, ठीक है? तो मैंने सोचा यार कि ठीक है, बात क्या करनी है? तालीम की, कंटेंट की, तो ये ज़रूरी है कि यार बंदा दिख रहा है, ज़िंदा है और वो ही बोल रहा है, ठीक है? रिलेटेबिलिटी मैच होगी, हाँ, सही है, हज़ारों लोगों को नहीं सुनना, 100 लोगों को सुनना है क्योंकि आपका अपना बेंचमार्क होना चाहिए ना। आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब आप स्टार्टअप पाकिस्तान के लिए बोलती थी, तो आपकी राय मैटर नहीं करती थी। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने उसमें जितना भी कुछ लिखा हो, आप कितना भी क्रिएटिव भी हो जाओ, लोग कहते हैं, "स्टार्टअप पाकिस्तान पे स्क्रिप्ट है, क्या स्क्रिप्ट है?" ठीक है? And one more thing I want to point out again, a very good question you asked earlier कि आपका पर्सनल ब्रांड और आप फेस वैल्यू बन रहे हो किसी ब्रांड की, तो ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है तो वो होगा जो ब्रांड चाहता है। आई न्यू आई वाज मेकिंग गुड कंटेंट। सारा स्क्रिप्ट मैं लिखती थी, कंटेंट मेरा होता था, टॉपिक रिसर्च एवरीथिंग वाज माइन। वी डिडंट यूज्ड टू हैव राइटर्स फॉर दैट, वी डिडंट यूज्ड टू हैव रिसर्च टीम, सब हम ही कर रहे होते हैं वहाँ पे। फिर वन डे आई कम अप एंड आई से कि मुझे फलाने टॉपिक पे बात करनी है या फलाने टॉपिक पे बात करनी है, व्हिच इज़ गोना बी समथिंग एजुकेशनल, व्हिच इज़ गोना बी समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी वांटिंग टू लिसन टू इट, बट व्हाट दे यूज्ड टू से कि इधर ट्रैक्शन नहीं आएगी, कमेंट्स नहीं आएँगे, लोग नहीं देखेंगे, सुनेंगे नहीं तो हम ये नहीं कर सकते। तो मे बी समथिंग दैट आई वांटेड टू डू मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ पे फॉलोइंग नहीं आनी थी। वो फिर वो वाली गुलदस्ते वाली ट्रैक्शन नहीं मिल रही थी। तो a lot of things and आप पाकिस्तान में हर ब्रांड को देख लें आजकल। जैसे क्रम्बल इज एन अमेजिंग ब्रांड। आई थिंक उनकी मार्केटिंग जो अभी लिंक्डइन पे चल रही है गोइंग अमेजिंग, बट देन अगेन द काइंड ऑफ अवाम दे आर ट्राइंग टू टारगेट, इट्स एवरीबॉडी। एंड वी से दे आर डूइंग गुड मार्केटिंग, बट वो भी अपनी नीश से निकल गए हैं। यार आपको पता होना चाहिए कि आपका वो लाइन कहाँ पर है जिसको क्रॉस करने के बाद आप कुछ मतलब हम्म। आपने 2-3 मर्तबा सेशन में बोला क्रम्बल का। मुझे अच्छा लगता था शुरू में। जब चीज़ें मैंने जो भी बात की है मैंने हाँ, बात मतलब की है कि जब हम चीज़ें गए हैं। हाँ, आज डूइंग एवरी जब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाती है ना बात, ठीक है? तो आपको फिर वो सही है और वो हो सकता है भाई उनका जो एंड गोल है वो वही हो। हाँ। हाँ, सेल्स बर्निंग हाँ, एवरी एसएमसी ब्रांड वांट सेल्स। हाँ, मतलब कुछ भी है, वो ये सोचेंगे कि वो किसी को भी जाके ये पिच करेंगे, भाई ठीक है, हम आपका ब्रांड बना देंगे। बोलेंगे कैसे? बोले हमने बनाया, अपना बनाया तो आपको ही बना देंगे और हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी उसमें सही हो। दैट कम्स टू सम टिप्स एंड ट्रिक्स पॉइंट्स है ये। तो यू हैव बीन अ कंटेंट क्रिएटर फॉर अ ब्रांड। क्या सीन है? कब हम अलीज़ा का चैनल देख रहे हैं, कंटेंट आपको कैसा बनाना पसंद है? क्योंकि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई रीच आउट टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई रियली वांट यार इतना अच्छा कंटेंट वही बोल रहा होगा जिसने कुछ ना कुछ सोचा भी तो होगा। मतलब आपको पता चल जाता है स्क्रिप्टेड कंटेंट ना, ठीक है? मैं जुनेजो को ही कहूँगा, अगर जुनेजो को मैं बोलूँ भाई ठीक है, अब उसके विजुअल कोई और बना रहा है, सबको पता चल गया है। लेकिन वो खुद बोल रहा है, ही इज़ अ ब्रांड, ठीक है? अलीज़ा का पर्सनल क्या क्या सोचते हो आप कि यार कि अगर बनाओगे, अगर नहीं वैसे तो बनाना चाहिए आपको, तो किस पे होगा? व्हाट्स योर जॉनरा? I want to for the longest while I've been thinking about it, but since आप जब इतनी चीज़ों में जगल कर रहे होते हैं, पढ़ाई के साथ मैनेज करना, देन मैं एमबीए के लिए आ गई, देन एमबीए के बाद देन जॉब हैज़ स्टार्टेड 9 टू 5 चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं मैनेज करना, बट देन इट वोंट बी लाइक अ एस्केप कि मैं बोलूँ कि जॉब है तो मैं मैनेज नहीं कर सकती। यू कैन बी पैशनेट अबाउट स्टफ एंड यू डू इट। बट फॉर मी अगेन मैं बहुत पिकी हूँ उन चीज़ों पे
on the topics that I want to talk about. I very recently did start this small thing, Flip the Script, which was everything about, career counseling, about relationships, about mental health, because ये चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब हैं. I've experienced, and I think relationships especially, in relationships आपको navigate करना नहीं आता. The kind of conversation we've had about men, women, society, stigma, mental health, सब कुछ खराब हो रहा है. क्यों हो रहा है? Because this not आपका कितना देख रहे हैं पाकिस्तान में content. How many people are talking about mental health? How many people are talking about relationship problems? How many people are counseling for careers? There's nothing like that. So this is the niche that I want to hit. Content मैंने बनाना start किया था, but again अब आप रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि for people like us who are into quality and who are into content and not into the शशके and not into the mic ये वाला हो, lighting ये वाली हो, editing ऐसी हो, तो attraction नहीं आती उमेर. People listen to it but we struggle a lot. हमें बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ता है उन चीज़ों के लिए. एंड फॉर मी मेरी constant struggle इसी चीज़ में रही है कि अब मैं एडिटर पकड़ूँ, मैं पहले सेट पूरा बना लूँ, देन आई स्टार्ट, और शुड आई स्टार्ट जस्ट लाइक दिस थिंग दैट यू आर डूइंग. आई हैड दिस आइडिया अ व्हाइल अगो, बट ऐसे कि चलेगा ही नहीं. और मैं लोग कहाँ से इतने सारे लाऊँगी हू आर गोना सिट हियर एंड गोना टॉक, बिकॉज़ वो तो एक देखते हैं ना कि एनवायरनमेंट है, पहले से आपका यूट्यूब चैनल है, आपके पास फॉलोइंग है, आप ऐड लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, अट्रैक्शन आएगी, नहीं आएगी. People think about that. Big fishes think about that. So the kind of podcast that I do on startup, and I've also been associated with another company that is going to be on air soon, other podcasts that I'm doing. Again, for those brands, for me, I'm making cash, I'm making money, but for me, I know maybe my name isn't coming there, but I'm enjoying as far as it's paying me. But for my own stuff that I start, it has to be quality and it has to be something just like you. Things that you want to talk about, I want to gather that community and then start. Could be 1 year down the lane, I will, but I will. You You would. should, you should, क्योंकि वो जो अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट करा बड़ा अच्छा था, क्योंकि Yeah. दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि कंटेंट कंटेंट से ना कंटेंट मुझे नहीं पता कि लोग बहुत सारे लोगों से मैं रीच आउट करता हूँ और वो कहते हैं कि आपका एंड गोल क्या है. मैंने कहा मेरा एंड गोल नहीं पता, ये तो मेरी नेट प्रैक्टिस है. एग्जैक्टली. और मेरे अपने दोस्त लॉट ऑफ पीपल वर लाइक ये क्या मतलब बोल अच्छा रही हो कंटेंट इज नाइस, ये क्या स्टार्ट किया, मतलब व्हाई वुड पीपल वांट टू. मैं कहा फॉर द पीपल हु आर गोइंग थ्रू इट दे वुड वांट टू लिसन टू इट. मुझे पैसा नहीं बनाना इसमें से, मुझे मे भी शायद फॉलोइंग भी नहीं चाहिए, बट आई वांट क्वालिटी कन्वर्सेशन एंड आई वांट कि मैं जो कंटेंट बना रही हूँ वो जिन लोगों के लिए है उन तक पहुंच जाए. एंड दैट्स द मोटिव, एंड आई थिंक मेरा मोटिव यही रहेगा. I फॉर मी व्हाट I personally believe कि यार कंटेंट क्रिएशन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ठीक है. जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे लगता था यार कि बहुत ही बेवकूफ़ों वाला आइडिया है, सही है. क्यों कोई बात करेगा, उससे किसी को क्या फ़ायदा होगा. या ऑलमोस्ट 600 आवर्स के बाद जो मैंने कंटेंट बना लिया है, तो मुझे पता चला कि यार कभी-कभार सिर्फ़ लोगों को सुनना चाहिए, आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है. आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं, ठीक है. सो कंटेंट अ, आई थिंक मुझे मेरे लिए मेडिटेशन का काम करता है कि यार आप कल किसी की सुन रहे हैं, हो सकता है कि 1 लाख लोगों को वो पसंद ना आए, हो सकता है आपकी एक बात एक बंदे को पसंद आ जाए, इट्स मोर देन एनफ. एंड अबाउट द टॉपिक्स कि यार आई रियली वांटेड टू सी, क्योंकि ये जो अभी मैंने टॉपिक से बात करी कि यार मैरिज हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि लड़कियाँ इन सब चीज़ों से गुजरती हैं, ठीक है. आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो, आपका एक वक्त आ जाता है जब आपके लिए कोई डिसीजन ले रहा होता है, ठीक है. और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार वो बहुत सही बंदा हो, ठीक है. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जब आप स्टेज पे जाओ, आपको अवार्ड मिल रहा हो तो वो आपको आपके लिए चिल्ला रहे हो, आपके लिए तालियाँ बजा रहे हो, ठीक है. वी डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट. और हैं भी तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं है उनको करना चाहिए, ठीक है. लेकिन बात वही थी कि यार आपसे बात करने का मेन मकसद था कि लोगों को पता, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बन रहे हो तो लोग आपको वैसे ही देखने लग जाते हैं, ठीक है. लोगों का मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग बोलते हैं "हाँ, तुम तो ऐसी हो." मैंने कहा नहीं भाई, मतलब मैं वैसा इंसान हूँ, मैं तफ़रियाँ करता हूँ, हर चीज़ है. ठीक है यार, दिस इज़ व्हाट आई लाइक, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मुझसे नहीं हो सकता. मैं जब दुबई आया था, तो लोगों ने मुझसे बोला कि, "अरे काम कर, तुम भी फूड व्लॉगर बन जाओ।" मैंने कहा, "मुझसे नहीं होगा, मैं कैमरा उठाऊँ और मैं लोगों को बोलूँ, हाय माय नेम इज़" भाई जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जब कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूँ? लेट्स Yeah. लेट्स पिक सम अदर टॉपिक एंड ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट. आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. Uh, anything you have in your mind? You told me that there is a DM that changed your life. A DM, one DM. The one DM changed your life, opportunity, support, hate, and everything. Like It is, or it will like it's kind of a कि आपको वेट करना चाहिए उसका. हेट तो बहुत मिला है, जब मैंने कमेंट्स पे देख लिया है. एंड आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड इज टू
नॉट गिव अ शिट अबाउट इट। मैं अपने इनबॉक्स खोलती नहीं हूँ, मैं अब कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ। अब तो आते लिंक्डइन पे नहीं आते। लिंक्डइन हैज़ अ वेरी गुड कम्युनिटी। आई हैव ऑलवेज़ गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर एवरीथिंग आई हैव डन एंड आई डू। बट हाँ, on startup if I say I used to get DM फज़ूल DMs and अजीब से कमेंट्स and I think whoever is working किसी ब्रांड के लिए इस तरह से openly on any advertising channel, they go through this. So I've been prone to it and I don't ठीक हो गया। think. तो मूविंग फॉरवर्ड, एनी एनी टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, जो आपको लगता है कि यार इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ सही हो जाएगी। आई एम प्रीटी मच श्योर जब आप बहरिया में गई थी, आपको मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जब आप पहली मर्तबा किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पहले दिन जॉब पे जाते हैं, वो सबसे बुरा होता है या वो सबसे अजीब-सा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप उसमें जो है वो इतना घुल-मिल नहीं होते। आफ्टर अ व्हाइल चीज़ें आपको सही लगने लग जाती हैं, ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर डूइंग फ्यू थिंग्स एंड फ्यू अचीवमेंट्स इन योर लाइफ, व्हाट डू यू थिंक यार कि कोई 3-4 ऐसी चीज़ बताना चाहोगे क्या लोगों को इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी अलाइन्ड इन अ व्हाइल? Two things I'll say. One, I talk about personal life, and second, I'll talk about the career life. अपनी पर्सनल स्टोरी में शेयर करूँ, इन पर्सनल लाइफ आई थिंक यू कैन नॉट डायरेक्ट योर लाइफ। मैं अगेन अपनी एग्जांपल दूँ तो बैरिया के टाइम पे मुझे नहीं पता था मैं बैरिया क्यों जा रही हूँ, मैं क्या करूँगी। आई वाज वेरी, मे बी आई वाज अ लिटिल हार्ट ब्रोकन, बट देन व्हेन आई गॉट इनटू इट, इट वाज नाइस। लम्स वाज नेवर माय ऑप्शन, इट वाज ऑलवेज माय सेकंड ऑप्शन। बैरिया से कर लिया, ग्रेजुएट हो गई, उसके बाद मेरा प्लान सॉलिड था कि मैंने बाहर जाना है एंड आई वांट टू स्कोर अ स्कॉलरशिप एंड आई वांट टू गो आउट। आई studied like crazy, gave GRE, Fulbright के लिए, but वो सारा plan चौपट हो गया। चीज़ें, and now I won't go into story, it's gonna get long. But again, I was planning it, God didn't plan it for me. And it wasn't there for me. और मैंने अपनी अम्मा के कहने पे लम्स अप्लाई किया था, जैसे कर दो, बिकॉज़ मैंने MBA तो करना ही था, बाहर से करना था, वहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से कर दो, बिकॉज़ पाकिस्तान की तो आईबी लीग लम्स ही है ना। एंड आई अप्लाइड एंड आई वाज़ लाइक, मैंने लीस्ट इंटरेस्ट के साथ इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू भी मेरा 40 मिनट का हुआ था। दे ग्रिल्ड मी अ लॉट और मुझे वहीं से आइडिया हो गया द काइंड ऑफ थिंग आई एम गेटिंग माय सेल्फ इनटू। पाकिस्तान में द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू गेट एट लम्स, इट्स ग्रिलिंग, इट्स बैड। वो आपको इट्स टॉर्चरस साइड से एंड इट्स वेरी ओपन। हूएवर गोज़ टू डू एमबीए फ्रॉम लम्स, आप जाएँ, आप खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे। आपकी लाइफ के वो 2 साल देयर टॉर्चर, बट इट्स गुड टॉर्चर दैट गेट्स यू इनटू गुड थिंग। तो मैं कह रही हूँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। डायरेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हो सका, बट व्हाटएवर came through my way and whatever I got today, I'm satisfied with it. तो आप डायरेक्ट नहीं करें, go with अल्लाह का plan and it's always gonna get sorted if you have that thing in you that is gonna take you to that point. करियर की मैं एग्जांपल ये दूँगी कि मैं ट्रीट करती हूँ कुछ रेड फ्लैग्स फॉर पीपल हू आर गेटिंग इनटू करियर एंड हू आर गेटिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ जॉब। 2 एक्सट्रीम्स होते हैं, एक बैड एक्सट्रीम है, एक गुड एक्सट्रीम है। बैड एक्सट्रीम इज़ द पीपल हू अंडरसेल देमसेल्व्स और अंडर लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है एंड यू नो दे नो दैट दे हैव दिस थिंग इन देम, बट अपने आप को उतना एप्रिशिएट ही नहीं करते, अपने आप से उतनी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते। एंड आई रिमेंबर एक पॉइंट मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा आया था कि आई वाज़ थिंकिंग कि तो हो ही नहीं सकता। व्हेन आई डिडंट गेट एडमिशन अब्रॉड एंड आई डिडंट कुडंट गो, तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो आप हर चीज़ को नलिफाई कर देते हो। ये नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी, वेरी बैड माइंडसेट दैट यू come with कि you're underselling yourself. And the second one, the second extreme is over smart people. मुझे तो सब आता है, मैं तो किसी को कुछ समझता ही नहीं। And I have seen a lot of such people मैं in MNCs, I've seen a lot of such people in LUMS, I've seen a lot of such people जिनके पास थोड़ी सी भी कोई चीज़ आ जाती है, वो अपने आप को इतना ओवर सेल करते हैं, हमसे तो कोई अच्छा ही नहीं है। और जब आप बंदे को बंदा नहीं समझ रहे ना, दैट्स गोना टेक यू नोवेयर। फॉर अ लिटिल व्हाइल आपको वो एक चीज़ मिलेगी कि ठीक है मेरे पास ये सब कुछ है, बट दे आर नॉट पीपल्स पीपल एट ऑल। आप अगर पीपल्स पर्सन नहीं हो, दोनों एक्सट्रीम्स में बैलेंस इट, otherwise you won't be able to make it. So these are few advices that I'll give, and red flags I'd want you people, whoever is listening, to avoid is to not even go at this extreme or not even go at this extreme. Just stay humble and make your way through. Network, हाँ, लम्स में हमने एक चीज़ हमेशा सीखी है, your network is your net worth. Be a people's person. इवन इफ आई डू नॉट वांट टू सेट इन अ लीगल कम्युनिकेशन, मैंने लॉ पढ़ा है एमबीए में, तो मैं जाके बैठूंगी सो दैट आई मेक पीपल फ्रेंड्स देयर, आई मेक गुड अक्वेंटेंसेस एंड आई नो व्हाट इज हैपनिंग। एंड हर एमएनसी में यू हैव टू डू दैट। तो बी अ पीपल्स पर्सन, Perfect. डोंट। I think we have covered a lot of good pointers, and it's my pleasure to have you on the session, Aliga. Hopefully we'll be seeing a lot of good content from your end coming soon. And thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much for having me. Best of luck with your series.